वेलकम स्टूडेंट्स। चलो आज के लेक्चर में चैप्टर 7 का एक लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि हैलोजन हैज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्सो एसिड कंपाउंड्स। तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट वन, HOF। इट्स नेम इज हाइपोफ्लोरस एसिड। Next is HOCl, HOBr, HOI. So all are known as hypohalous. F then hypofluorous, Cl then hypochlorous, Br then hypobromous, and I then hypoiodous. And here the oxidation state of halogen is +1. That's why these are known as halic 1 acid. So this 1 indicates the oxidation number of halogen in the particular oxo acid. So due to the high electronegativity and the small size, fluorine forms only one oxo acid named HOF, and it is known as fluoric 1 acid or hypofluorous acid. And the other halogens form several oxo acids. Most of them cannot be isolated in pure state. Generally salt के form में ही होते हैं. They are stable only in the aqueous solutions or in the form of their salts. मतलब aqueous solution में ही वो होंगे. Next, तो देख लो hypofluorous, hypochlorous, hypobromous and hypoiodous. Next is halic 3 acid, and here the oxidation number of halogen will be +3. So this for Cl oxidation number is +3. And name is chlorous acid. Again, the name is chlorous acid, and this is halic 3 acid. Next is halic 5 acid. Here oxidation number is +5. HOClO2. Actually it is known as HClO3, HBrO3 and HiO3. Okay, again HClO3, HBrO3 and HiO3. Okay, but here in oxo acids the protonated hydrogen is attached with oxygen. That's why they are known as oxo acid. Oxo acid का मतलब ही है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज H+ रिमूव होने वाला है वो O के साथ कनेक्टेड है. तो देख लो इसका स्ट्रक्चर, तो इसे आपको पता चल जाएगा HOClO2. So in actual it is known as HClO3. Chloric, bromic and iodic. And if one oxygen atom is more, then it is known as halic 7. Oxidation number will be +7, and they are generalized known as per halic. If Cl, then per chloric, Br, then per bromic, I, then per iodic. Okay, next. See, these are the structures: hypochlorous acid, then chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. Okay, there will be one more oxygen atom. Okay, देखो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होगा HO और Cl. ओके, सिमिलरली क्लोरस एसिड, तो क्लोरीन कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो देखो 7 तो है ही. तो एक जगह पे आएगा OH और दूसरी जगह पे आएगा डबल बॉन्ड O और 2 लोन पेयर उसके पास बचेगी. सिमिलरली क्लोरिक एसिड बताए तो और एक लोन पेयर गई, तो मतलब इसके पास एक ही लोन पेयर होगी, इसके पास 2 लोन पेयर होंगी, इसके पास 3 लोन पेयर होंगी. Okay, and here in perchloric acid there will not be any single lone pair. Okay students, so these are the oxo acids: halic 1, halic 3, halic 5 and halic 7. याद ये रखना है, fluorine forms only one halic acid,
where helic 3 acid, ये जो हेलस एसिड लिखा है ना, दैट इज अ क्लोरस एसिड. सो ओनली क्लोरीन कैन फॉर्म हेलिक 3 एसिड. अगेन, ओनली क्लोरीन कैन फॉर्म हेलिक 3 एसिड. बाकी यहाँ पे देख लो डैश लिखा है तीनों जगह पे. सिमिलरली फ्लोरीन में भी देखो ओनली HOF इज पॉसिबल. ओके, तो सबका नाम लर्न करना है, सबका फॉर्मूला लर्न करना है. किसके पास कितनी लोन पेयर, चलो वो मैंने दिखा दिया. HClO4 में क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, HClO2 में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर, HClO3 में 1 लोन पेयर, और HClO4 में 1 भी लोन पेयर उसके पास नहीं होगी. ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ ऑक्सो एसिड. ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज, जो अच्छे क्वेश्चंस है और एग्जाम में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7.31. द फर्स्ट नंबर इज H3PO3 and here the oxidation state of phosphorus can be calculated by this way. 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, फॉस्फोरस का X, 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का -2, total oxidation number is 0. So that 2 plus X minus 6 equals 0. So that X equals 2 minus 6 is -4. So another side जाएगा तो +4. Just a minute, हाँ गलती हुई ना, यहाँ पे 3 आएगा. So 3 minus 6 is -3. another side जाएगा तो +3. गलती से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था. नेक्स्ट नंबर 2, PCl3. फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चलो पूछा है यहाँ पे सब जगह पे. 3 क्लोरीन का, हर एक क्लोरीन का -1, टोटल 0. दैट्स वाई X इक्वल्स +3. ओके, सो ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा फॉस्फोरस का. नेक्स्ट इज Ca3P2. तो फॉस्फोरस का, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होगा, और ऐसे कितने 3 है, और 2X इक्वल्स 0. तो 6 अनदर साइड जाएगा -6. सो X इक्वल्स -3. ओके, नेक्स्ट नंबर 4, Na3PO4. तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चलो क्या होगा, सोडियम का 3, ऐसे 3 सोडियम, फॉस्फोरस का X, ऑक्सीजन का -2, ऐसे 4 है, इक्वल्स 0. टोटल होगा 3 प्लस X -8 इक्वल्स 0. सो दैट X इक्वल्स -5, 3 - 8 इज -5. अनदर साइड जाएगा +5. एंड द लास्ट वन इज POF3. तो फॉस्फोरस का X, ऑक्सीजन -2, 3 फ्लोरीन, हर एक का -1, टोटल 0. X इक्वल्स होगा -2 एंड -3 -5. अनदर साइड जाएगा +5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7.31 इज ओवर. चलो नेक्स्ट, गिव द फॉर्मूला and the describe the structure of noble gas species which is isostructural with. तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ICl4 1-, तो इसका शेप कैसा होगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, इसकी कितने लोन पेयर हैं. 3 क्वेश्चन. फर्स्ट, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कितने लोन पेयर, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. पहले हमें तीनों का ये पहले पता करना है. ICl4 1-. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है. वैसे यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में पूछे तो डायरेक्टली हमें लिखना होता है कि ये 3 है, लेकिन उसके पहले आपको फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना कि क्या होगा. तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है, और ये मेथड हम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए नहीं. एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना होगा. तो करेंगे क्या, तो चलो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम क्या होगा,
So our answer is iodine. Okay, अगेन आयोडीन इज अ सेंट्रल एटम. तो ये जो आई है तो उसके आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 और 7. और इसका चार्ज -1 है, तो फिर जो नेगेटिव चार्ज होगा तो जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दो. तो मैंने टोटल यहाँ पे 8 कर दिए. अब आयोडीन जो सेंट्रल एटम है उसके साथ कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, Cl. कितने, 4 Cl एटम्स. अब जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. ओके, तो अब इसके पास आयोडीन के पास कितनी लोन पेयर बची, गिन लो. आंसर इज 1 and 2. Lone pair is 2 and number of sigma bonds equals 4. तो अब कैलकुलेट करो सिग्मा प्लस एलपी. एलपी फॉर लोन पेयर. ओके, लोन पेयर मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेती होगी वो, और ऑलवेज वो पेयर ही हमें कैलकुलेट करनी है. 1 2 3 4 4 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट 2. सो सिग्मा प्लस एलपी कितना होगा, सिग्मा 4 एलपी 2, टोटल हुआ 6. सो अगेन ये 6 क्या है, सिग्मा और एलपी का टोटल. तो ये जो 6 होगा तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. वो नंबर से आपको पता चलेगा. अगर आपको सिग्मा प्लस एलपी 2 मिल रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन 3 मिल रहा है, तो sp2 4 मिल रहा है, तो sp3 5 मिल रहा है, तो sp3d, और 6 मिल रहा है तो sp3d2. अब कितने लोन पेयर उस हिसाब से आप देख लो. तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 2. सो देयर आर 2 लोन पेयर. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर. तो आयोडीन फर्स्ट Cl, सेकेंड Cl, थर्ड Cl एंड फोर्थ Cl, और उसके पास 2 लोन पेयर. मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. तो इससे यहां पे ये पता चला कि इसका शेप होगा कौन सा, तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर. अब याद करो कि नोबल गैस का कोई कंपाउंड के जिसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसका एग्जांपल है XCF4. थियोरी हमने पढ़ाया था, याद करो. ओके, तो इससे पहले तो आपको ये पहले निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और कितने लोन पेयर होंगे. XCF4 का स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा ही है. जेनोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 8, वो तो कंप्लीट है. और कितने फ्लोरीन एटम्स अटैच हो रहे हैं, आंसर इज 4. तो कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर बचे, देख लो. ओके, 2 लोन पेयर बचे. तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे शेप क्या होगा, सेम स्क्वायर प्लेनर होगा. तो ये जो फर्स्ट नंबर है इसका आंसर क्या होगा, XCF4. हमें तो सिर्फ आंसर ही लिखना है. गिव द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज XCF4 एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस. कौन सा स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर. ओके, तो उसके लिए पहले ये तो गिनना पड़ेगा ना कि इसका क्या होगा. सिमिलरली सेकेंड इज IBr2 1 माइनस. So number 2 is IBr2 1 minus. जिसमें आयोडीन सेंट्रल एटम है और आयोडीन सेंट्रल एटम और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, और नेगेटिव चार्ज तो एक एक्स्ट्रा. ओके, और ये होगा आयोडीन का के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और एक नेगेटिव चार्ज का. चलो 2 Br अटैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ एक Br ये, दूसरा Br ये, तो 2 सिग्मा हुए. तो कितने लोन पेयर होंगे, 1 2 और 3. सो देयर विल बी 3 लोन पेयर and 2 sigma bonds. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर IBr2 1 माइनस इज फॉर्म्ड तो IBr और Br 2 हो गए. ओके, और इसके पास टोटल 3 लोन पेयर.
तो शेप हुआ इसका लीनियर, ओके, लीनियर शेप हुआ। और सेकेंड थिंग, ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका था याद करो, XCF2 का, xenon। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 3 लोन पेयर और 2 फ्लोरीन के कंपाउंड्स, ओके। और ऐसे कितने, 3। ओवर। नेक्स्ट, नंबर 3। थर्ड नंबर इज BrO3 1 minus. Okay, so number 3 is BrO3 1 minus. So here also there will be first of all 7 electrons for central halogen atom and 1 electron is more for the negative charge. Here 3 oxygen atoms are attached and we know that the valency of oxygen is 2. And whenever double bond is prepared, then one is pi, sigma and one is pi, sigma and pi, sigma and pi. So there will be 1 lone pair. और कितने सिग्मा बॉन्ड्स आए यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड्स 3 and 1 lone pair. Okay, so that sigma plus LP equals 4. So that which hybridization, 4, then 3 plus 1 4. Then this 4 means sp3 hybridization. ओके, बट 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो इसका स्ट्रक्चर होगा अमोनिया जैसा, लेकिन इनर्ट गैस का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर, तो याद करो XCO3 और xenon के पास 1 लोन पेयर होगा, तो इसका शेप हुआ ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा है, इसको स्ट्रक्चर वाला इनर्ट गैस का कंपाउंड कौन सा, आपको इन्वर्ट पूछा है। ओके, तो ये अच्छा वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फंडामेंटल तो एक ही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, और ये नेक्स्ट है अपना हाइब्रिडाइजेशन एंड ये, तो ये लर्न करो ठीक तरह से। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम कुछ कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप, मॉलिक्यूलर शेप हम फाइंड आउट करेंगे। चलो, उसमें फर्स्ट है OF2। तो OF2 में हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप कैसा होगा। ओके, तो OF2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका शेप होगा बैंड। क्यों? क्योंकि 2 लोन पेयर होंगे, ओके, और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ओके, तो इसका शेप होगा बैंड। मैंने जो भी मेथड करवाई उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, चलो, अब इसके बाद और एक कंपाउंड, और वो है IF3 और दूसरा है SF4। ओके, चलो, अब इन दोनों का शेप फाइंड आउट करना है। ओके, तो IF3 दोनों में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और दोनों के शेप की बात करें तो IF3 में 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे टोटल लोन पेयर्स होंगे 2। तो आयोडीन के साथ F और F, तो इसका शेप होगा T शेप्ड। सिमिलरली यहाँ पे SF4 में टोटल 4 एटम्स और सेम हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका
आपका सी सॉ। ओके, सी सॉ जैसा इसका शेप होगा। ओके, नेक्स्ट चलो, और एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट F2 Cl2 Br2 और I2। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा शायद एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन में आया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऐसी है इसकी, पहले आएगा आयोडीन और उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो पहले आएगा आयोडीन, आयोडीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, देन आफ्टर फ्लोरीन, इट इज एन एक्सेप्शन, देन आफ्टर Br एंड देन फाइनली Cl-Cl। ओके, तो याद रखो ये, दिस इज आवर नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड नंबर इज HF, HCl, HBr एंड HI, तो इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पहले आएगा HF अब रेगुलर, HCl, HBr एंड देन HI। ओके, जो दिया है वही आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, NH3, PH3, ASH3 मीन्स अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सिन, स्टीबाइन एंड बिस्मुथाइन, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, तो स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रेंथ में आपको याद रखना है कि पहले आएगा BiH3, देन SbH3, ASH3, PH3 and finally is NH3, it is the most basic। ओके, और ये आएगा लीस्ट बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, देन गुड बाय।